Hello friends, how are you? So I hope you all are doing great. So we are continuing with our discussion on November 2020 paper number 3, cost accounting, right? CA intermediate new course. Let's see. We have covered till question number 3A part. Now moving on to question number 3B part, right? 10 marks question, and this question is from material costing. वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आई कैन से, पूरे पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, सबसे सिंपल सर, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में. देखें, चलो. एन ऑटोमोबाइल कंपनी परचेजेस 27,000 स्पेयर पार्ट्स फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट्स. The cost per order is rupees 240 and the annual carrying cost of inventory is 12.5%. Each spare part cost rupees 50. At present, order size is 3,000 spare parts. This is at present. Assume number of days in a year to be 360 days. Find out how much the company's cost would be saved by opting the EOQ model. तो इसका मतलब है कि we have to calculate the EOQ first and then compare the EOQ model cost with the present model where we are ordering 3,000 spare parts, right? So this is what is asked. The reorder point under the EOQ model, if the lead time is 12 days, how frequently the order should be how frequently should orders for procurement be placed under the EOQ model? Clear? So that means first and the foremost thing is we have to calculate EOQ. For EOQ, what we need is the annual requirement that is given to us 27,000. We need the ordering cost that is given to us, that is 250, and then we need the carrying cost that is 12.5% or 50 that is given to us, right? So first step is to calculate EOQ. Okay, question number 3, B part. So first step is the calculation of EOQ. Calculation of EOQ. Let's see. What is the annual requirement? Annual requirement is 27,000 units. Right? What is your ordering cost? Ordering cost is rupees 240. What is your carrying cost? Carrying cost is 12.5% of rupees 50, that is the per unit, rupees 6.25, right? So we have to calculate EOQ now. EOQ is equal to under root of 2 multiplied by A multiplied by O divided by C. So this comes to 2 multiplied by 27,000 units, that is the annual requirement, multiplied by ordering cost, that is 240, divided by carrying cost, that is 6.25. So solving this, what you will get is the value of EOQ, that is 1440 units, right? So this is the optimum level of order, 1440 units. But currently what they are doing is, currently they are ordering 3,000 spare parts. Now they say you have to calculate the comparison between the cost, right? What cost would be saved by opting the EOQ model? वो क्या कह रहा है कि सर अगर आप लोग EOQ मॉडल ऑप्ट करते हो तो आपकी कितनी कॉस्ट सेव होगी, राइट? चलो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सेविंग. कैलकुलेशन ऑफ सेविंग्स इन कॉस्ट, राइट, अंडर EOQ मॉडल, अंडर EOQ मॉडल. लो सर, इसमें हमारे पास क्या है, एक तरफ मैं लूंगा कि हमारा EOQ मॉडल है और एक तरफ है हमारा प्रेजेंट मॉडल जहां पर हम लोग 3,000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, ठीक? तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड. EOQ में हम कितने करेंगे सर, 1440, और प्रेजेंट में हम लोग कितना कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम लोग कर रहे हैं 3,000 यूनिट्स. तो इसके हिसाब से मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएगा सर, एनुअल रिक्वायरमेंट दैट इज 27,000, राइट? 27,000 इज द एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. तो ये आएगा सर आपके पास 18.75 और ये आएगा आपके पास 9. तो यहां पर अब मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी,
ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? ₹240। ठीक है, वो हमने पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है सर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास आई सर 4500 और यहां पर मेरे पास आएगी 2160। ठीक, अब एक चीज यहां पर कर सकते हो क्या कि सर ये जो ऑर्डर्स हैं इनको आप राउंड ऑफ कर सकते हो टू 19 कि सर पार्शियल ऑर्डर्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप 19 ऑर्डर्स करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। तब 60 रुपीज का आपका डिफरेंस आएगा। ठीक है, जो आंसर अब हम निकालेंगे उससे 60 रुपीज का फर्क आएगा उस आंसर का। ठीक है, कर सकते हो, अगर राउंडिंग ऑफ करके ऑर्डर्स की किया है तो भी गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आया सर कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद आई मेरे पास कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी सर? जितना ईओक्यू था, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, राइट। तो ईओक्यू इस केस में क्या है? 1440। 1440 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 6.25 से। कैसे सर? ये निकाल रखा है 6.25। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? यहां पर आप लोगों ने कैलकुलेशन क्या करनी है? दिस विल कम 1440 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.25, राइट। सो द वैल्यू विल बी 4500। यहां पर क्या आएगा? 3000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.25। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 9375। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? तो मेरे पास यहां पर अब टोटल कॉस्ट क्या आएगी? यहां पर मैं क्या करूंगा सर? अब टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट यहां पर आएगी मेरे पास सर, यहां पे 9000 किस किस का टोटल? इन दो का टोटल। ठीक है, और यहां पर आएगी 11535। अब यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट पूछेगा कि सर आप लोगों ने जब उसने कॉस्ट पूछा है तो आपने परचेज कॉस्ट क्यों नहीं ली, राइट। हमने क्या किया है? हमने रेलिवेंट कॉस्ट ली है, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। उसने सेविंग्स इन कॉस्ट पूछा था तो मैंने रेलिवेंट कॉस्ट ली, मैंने यहां पर परचेज कॉस्ट क्यों नहीं ली? सर ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी दोनों मॉडल्स में परचेज कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। परचेज कॉस्ट जितनी थी उतनी ही रहेगी, इसलिए मैं उसको लूं चाहे मैं उसको इग्नोर करूं, राइट, it will not make any difference. The answer will remain the same, right? What I have considered is I have taken the total relevant cost. Relevant cost means the ordering cost and the carrying cost. Because there is no change in the purchase cost, there is no change in the purchase price, there is no discount on offer, right? So it will make no difference whether you are taking the purchase cost or whether you are ignoring the purchase cost. It will not make any difference. Clear? So the savings in cost will be savings in cost is equal to present level 535 minus the EOQ level that is 9000. This comes to rupees 2535. Any doubt up to this point? Right? Very simple question, right? कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम जो भी कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ तक तो बिल्कुल आसान था। सर आगे भी आसान है। आगे उसने अब क्या कहा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में। आगे वो क्या कह रहा है? कहता सर रीऑर्डर पॉइंट अंडर ईओक्यू मॉडल इफ द लीड टाइम इज 12 डेज। ठीक है, लीड टाइम इज 12 डेज, उसके लिए हमें रीऑर्डर लेवल निकालना है। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब है रीऑर्डर लेवल सर। तो सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा? उसने कहा सर रीऑर्डर पॉइंट निकाल के दो। रीऑर्डर पॉइंट और लेवल इज वन एंड द सेम थिंग। तो इसमें क्या लूंगा? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम, यही लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैक्सिमम लीड टाइम आपको क्या दे रखा है? मैक्सिमम लीड टाइम आपको 12 डेज दे रखा है। अब ये बताओ कि आपके पास 12 डेज की कंजम्पशन कितनी होगी? आपके पास 12 डेज की कंजम्पशन चाहिए, बेसिकली वही तो रीऑर्डर पॉइंट चाहिए ना सर। एक सामान आने को 12 दिन लगेंगे, तो मेरे पास 12 दिन का स्टॉक होना चाहिए। जब 12 दिन का स्टॉक होगा तब मैं रीऑर्डर लेवल तब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। सो दैट बिकम्स
माई रीऑर्डर पॉइंट। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक दिन की कंजम्पशन चाहिए यहाँ पे। पूरे साल की कंजम्पशन कितनी है, 27,000 की, और एक साल में कितने दिन, 360 डेज, दिस बिकम्स माई 1 डे कंजम्पशन, राइट। ये मेरे पास क्या आई है सर, ये मेरे पास आ गई 1 डे कंजम्पशन, राइट। So 1 day consumption multiplied by 12 days, that is the lead time. Clear? This gives me the reorder point, that is 900 units. Clear? Now, this is done, this is done. The third part, how frequently should orders for procurement be placed under EOQ model? Frequency of orders. Frequency of orders. Third part is frequency of orders. तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 360 डेज, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ 360 डेज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कैलकुलेट किए थे, दैट इज 18.75 और 19, आप जैसे भी ले सकते हो। तो ये आएगा सर 19.2 डेज, या 19 डेज ले सकते हो इसको राउंड ऑफ करके। कोई डाउट किसी को? सो दिस इज द क्वेश्चन जो आप लोगों का 10 मार्क्स में आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 10 मार्क्स के हिसाब से, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। मतलब बोनस मार्क्स, अगर इसमें भी गलती करके आए हो तो फिर तो भैया भगवान बचाए आपको। अगर इस क्वेश्चन में भी गलती करके आए हो, अगर यहाँ पे परचेज कॉस्ट ली है तो कोई गलत नहीं कर सकता सर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर नहीं ली तो भी ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट ली है तो भी ठीक है, अगर परचेज कॉस्ट ली है तो भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है सर, कोई गलत नहीं है। आंसर वही रहेगा, आंसर 25-35 ही आएगा, राइट। और केस क्या हो सकता है, अगर आपने ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स का राउंडिंग ऑफ करके 19 ले लिया तो ये आंसर आपका 2475 शायद इतना आएगा, ठीक है, कुछ इतना फर्क आएगा। वो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट 45-60 हो जाएगी, बस इतना सा फर्क आएगा आपका, ठीक। तो रीऑर्डर पॉइंट हो गया और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट ऑन मटेरियल कॉस्टिंग, इस ये हो गया हमारा खत्म सर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रोसेस कॉस्टिंग का सिंपल क्वेश्चन है सर, मुश्किल नहीं है, राइट। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंथी है, फटाफट से करने वाला क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को मेथड्स क्लियर हैं, आता है सब कुछ, तो आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, बिकॉज यू आर द ओनली सोर्स हु कैन स्प्रेड दिस, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई फ्री में लेक्चर्स पढ़ें। अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो जिन्होंने अभी फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप देना है। सेकंड ग्रुप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है। सो गाइज प्लीज़ 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 शेयर विद एवरीवन, राइट, हु कैन टेक द बेनिफिट। फ्री लेक्चर्स हैं, कुछ पे नहीं करना। स्टडी मटेरियल लेना है तो अलग बात है सर, दैट इज पेड, राइट, अदरवाइज लेक्चर्स आर फ्री। सो गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।